सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द फार्मर न्यूज़ एंड अपडेट्स। इस चैनल पे मैं फार्मर रिलेटेड जो न्यूज़ है एंड अपडेट्स है वो देता रहता हूँ, आप सबको पता होगा। तो मेरे पास अभी एक न्यूज़ है जो जिसको लेकर मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये वाला न्यूज़ देखा है और मैंने लिंक्डइन पे भी शेयर किया है और मुझे बहुत सारे रिलेटेड कमेंट्स मिले इस पे कि हाँ ये सच है। पहले तो हम लोग न्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं, आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट एज ऐसे कोई मतलब ऐसे न्यूज़ नहीं है कोई हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो तो फार्मेसी कॉलेजेस फाउंड फेकिंग प्रिंसिपल एंड फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स। सो सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहूँगा हमारे जो फार्मेसी के डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको कि मतलब ये कितना तक सच है एक्चुअली दिस न्यूज़ इज़। बट मुझे जो कमेंट्स मिले हैं मेरे लिंक्डइन पे एंड अदर सोशल मीडियाज़ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर दिस थिंग्स आर मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग इनको टोटली इग्नोर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो ये बिल्कुल सच है। सम फार्मेसी कॉलेजेस यू कैन सी द हम लोग न्यूज़ को पढ़ते हैं थोड़ा सा, आप लोग भी सुनो मेरे साथ। सम फार्मेसी कॉलेजेस आर रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स एंड इवन पुटिंग अप dummy principals and faculty during the digital inspections, alarming the Pharmacy Council of India into threatening these institutions with criminal proceedings. Okay, next para पे चलते हैं। After finding different people with different names, the regulator has directed its inspector to check the veracity of faculty members and the principal, including their education qualification, experience, failing which action will be taken against the college as well as the inspector. The penal action includes cancellation of registration, filling of a first information report FIR, and blacklisting for 3 years from teaching. Okay, another, this level of subterfuge is alarming given India has more than 8,000 pharmacy colleges with over 91,000 faculty and more than 5,13,727 students. Council has more than 1 lakh pharmacists on its registry. As part of the digital inspection round, inspector are supposed to verify the QR code for each faculty member and take photograph of them, and the principal wearing the correct QR code based smart card with similar clear background for all. Inspectors or institutions are not following the guidelines of the council. Inspectors are not submitting pictures of faculty with valid QR code generated smart card from DG Pharmat portal. Stated a communication issued a registrar comes secretary of the PCI to all the inspectors and pharmacy constitutions. The communication seen by main state dummy principal and faculty are being shown in institution. Okay, so now we can't ignore this line. Okay, जैसे इसको कोट किया गया है, inspectors are required to check the genuineness of the faculty and principals, including their education qualification, experience and salary, failing which the action shall be intimidated and blacklisting for 3 years. यहाँ पे बताया गया है the inspectors have been made totally virtual or been linked up through QR code. The inspections guidelines are not being followed properly. So इसमें हम लोग बेसिकली यही देख रहे हैं कि PCI has more than 1 lakh pharmacists on its registry or 8,000 pharmacy colleges with over 91,000 faculty. Now can you imagine the number? So it's a huge, मतलब हर दिन एक न्यू कॉलेज हो रहा है लेकिन स्टिल वी आर नॉट डेवलपिंग, वी हैव नो जॉब्स, वी हैव नो सैलरी, सिर्फ कॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है। एंड जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही जॉब है फ़िलहाल जो करेंटली फार्मेसी के फील्ड में ग्रो हो रहा है, विच इज़ द फैकल्टी जॉब्स। मतलब ग्रो हो रहा है दिखने में, बिकॉज इफ़ यू सी इन डीप सो देयर इज़ नो ग्रोथ। पहले की बात अलग है, बट फ़िलहाल इस सेक्टर में भी काफ़ी सेचुरेशन आ चुका है। सो उसी का एक यहाँ पे इफ़ेक्ट आप बोल सकते हो इस न्यूज़ को। एंड मतलब दिस मच ऑफ यहाँ पे करप्शन हो रहा है। सो जैसे मैंने इसको अपलोड किया, शेयर किया, एंड मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग
किसी किसी ने कमेंट किया है कि हम लोगों ने इससे ज़्यादा देखा है, नॉट ओनली प्रिंसिपल, इवन कॉलेजेस, समवन सेड कि schools are being used for showing as a college when inspectors are coming. So I don't know मतलब ये कितना तक सच है कितना तक नहीं है, बट हम लोग इन सभी न्यूज़ेस को इग्नोर नहीं कर सकते. एट दैट इज़ वाई आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो. थोड़ा सा कुछ अगर हम स्प्रेड कर सकते हैं इसको ऑल ओवर इंडिया, पहुंचा सकते हैं टू डिफरेंट पर्सन्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स, जो रिस्पॉन्सिबल है इन सबको रेगुलेट करने के लिए. सो मे बी कुछ अच्छा हो जाए, राइट. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को शेयर करना एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग गाइज. You can see the headline, it is just hurting us, right, as a pharmacist. Like हम लोगों को ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड आप में से जिसके पास भी जो एक्सपीरियंस होगा, आप सभी इस कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आई वांट टू नो एवरीथिंग, ठीक है. बिकॉज लाइक मेरे लिए मेरा यही प्लेटफॉर्म है जो मेरे सोशल मीडिया से. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू. So if you feel anything like this, you can just simply comment in LinkedIn or in YouTube videos, everything. हम लोग ट्राई करेंगे as much as possible इनको स्प्रेड किया जाए, क्योंकि जब तक स्प्रेड नहीं होगा तब तक कोई एक्शन आई डोंट थिंक लिया जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.